بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کو میزبان ذاکر ناصر ایک بار پھر حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہو. ناظرین, آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مسائل ہم اجاگر کر رہے ہیں تاکہ حکمرانوں یا دیگر حوالے سے جو ہے وہ مسائل اجاگر کریں گے. اس وقت ہم لوگ جو ہے بلوچستان کے مسئلے جو درپیش ہے, جو عوام مشکلات کا شکار ہے, دوسرے کہ یہاں پہ قبائلی حوالے سے بھی کچھ مسئلے ہیں. تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈیو کے لیے دو بندوں کو دعوت دی جو قبائلی اور سیاسی حوالے سے جو وہ ایک معلومات رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کی طرف جا رہا ہوں. پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے پہلا مہمان جو ہے ملک سرور خان تانیزی صاحب ہے. قبائلی اور سماجی حوالے سے ان کی پہچان ہے. ملک صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا مہمان ہمارے جو ہے ینگ جرنلسٹ کی جو ہے صوبائی صدر ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے ڈاکٹر ثنا سیکزی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب, اس وقت جو ہے بلوچستان کے حوالے سے جو مسائل ہیں آپ کی نظر ہیں, کیا واقعی جو موجودہ حکمرانوں نے وہ مسائل حل کیے ہیں یا حل کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس ہیں, خاص کر جو لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹر, آپ اندازہ لگائیں کہ جس ٹائم ایوب خان آیا تھا, ایوب خان نے پاکستان میں ایک چینج لایا تھا. کراچی سے دارالخلافہ لے کر اسلام آباد بنایا اور ایک گرینری وادی میں یہ کام کیا. تربلا ڈیم, منگلا ڈیم, کلاسک ڈیم اور جتنے بھی پاکستان میں ترقیاتی کام ہوئے ہمیشہ ڈکٹیٹر کے حکومت میں ہوئے, فوجی حکومت میں ہوئے. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آیا تھا. ضیاء الحق صاحب نے اسلامی حوالے سے, اسلام کے حوالے سے جتنے انفراسٹرکچرز کیے, بنائے اور سکولز بنائے, ہاسپٹلز بنائے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اس نے جتنے کوشش کیے نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ. اس کے بعد جب مشرف صاحب آیا تھا, مشرف صاحب نے بھی بلوچستان کا, خاص کر بلوچستان پہ اس نے جتنے توجہ بلوچستان پہ دیے میرے خیال سے ادرز پروونس پہ بھی نہیں دیے. بلوچستان میں اس نے ایکول نظر سے اس نے کام کیے بلوچ اور پشتون بیلٹ میں. بلوچ بیلٹ میں بھی ایک بڑا ڈیم بنایا اور پشتون بیلٹ میں بھی ایک بڑا ڈیم بنا ہے. اور کوئٹہ ٹو کلاد بھی ایک روڈ بنا ہے, کوئٹہ ٹو زو بھی ایک روڈ بنا ہے. اور انفراسٹرکچر جتنی بھی ولیجز سطح پہ یا علاقائی سطح پہ جتنے کام مشرف صاحب کے دور میں ہوئے, ہر ادارہ ہر ڈپارٹمنٹ آپ نے جو ایس او پی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ایس او پی ہے وہ اپنے ایس او پی پہ کام شروع کیے اور ہر بندہ اپنا کام کر رہا تھا. ہوئی بات جمہوریت کی. جمہوریت میں میں نے آج تک 72 سالوں میں جمہوریت کے حوالے سے میں نے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ نہیں لائے اور نہ کیے. اگر آپ نہیں مانتے, آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ اس موجودہ مسئلے کا حل کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کی نظر ہے, آپ اکثر اوقات سیکریٹریٹ بھی جاتے ہیں اور سیکریٹریٹ میں آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. موجودہ حکمرانوں نے جو عوام کے مسئلے تھے وہ حل کیے یا نہیں کیے؟ بہت مہربانی. سب سے پہلے آپ کا ظاہر خان صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پورے بلوچستان میں, بلکہ میں نے تاریخ میں ایسی, میں کبھی بھی کسی پر اختلاف نہیں کرتا, پورے تاریخ میں نے بلوچستان حکومت جو اس دفعہ حکومت پر آئے ہوئے جو بھی آتے ہیں لوٹ کر چلے جاتے ہیں, لیکن تاریخ میں نے اتنا کرپشن نہیں دیکھا جتنا کرپشن پچھلے کچھ ٹائم پہلے, کچھ سالوں پہلے جو کرپشن تھا. اس ٹائم کرپشن ٹرپل ہو گیا, اور جگہ کرپشن ہی کرپشن. ابھی میں آپ کو ایک محکمہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اپنے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہلے جس کے پاس تھا, میں تو داد کے مستحق جام صاحب جو اس سے ہیلتھ لیا, لیکن اس سے زیادہ خراب کیا جام صاحب نے. کس حوالے سے کہ پورے بلوچستان میں اس ٹائم ہیلتھ میں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پر پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے علاوہ سرکاری ہاسپٹل گائنی وارڈ میں 6 دن میں مسلسل 8 لیڈیز شہید ہو چکی ہے, مطلب بچے کے اوپر وہ شہید. جی
गफलत, कोई डॉक्टर नहीं है सिविल हॉस्पिटल में, अकेला सिविल नहीं, सिविल हॉस्पिटल, बेनज़ीर हॉस्पिटल, BMC हॉस्पिटल, हमारे सिनार हॉस्पिटल के आपको पता है पिछले दिनों मलिक साहब ने एक मुजाहरा भी किया था। सिनार हॉस्पिटल का एक छोटा इंजेक्शन है जो नवाटिस कंपनी ने उसके ऊपर बैन लगे कि वो मिलती नहीं है, हुकूमत के हवाले से फ़ंड नहीं है, हुकूमत कभी भी फ़ंड देगी भी नहीं। हमारे मोहतरम जाम साहब जो बैठा हुआ है, जाम साहब इसका बिल्कुल मैं आपको बताऊं वो वज़ीर आला के लायक नहीं कि वो वज़ीर आला सिस्टम चलाए, पूरे डिपार्टमेंट को उसने तबाह बर्बाद किया है। अच्छा मलिक साहब, आप लोगों ने वाकई एक मुजाहरा भी किया, जी। तो उस मुजाहरे की असल मकसद क्या है और आप लोगों ने जो मुतालबात पेश किए वो हुकूमत ने उस पर कुछ गौर किया या नहीं किया? मुतालबात इस वजह से कि पूरे बलूचिस्तान में 572 पेशेंट्स हैं कैंसर के, तो इन लोगों ने हमारे इलाके के 3-4 बंदे थे, उसने कहा था मलिक साहब हमारे साथ कोई बंदा है नहीं कि हमारे आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा दे। तो मैंने कहा था ये इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आया और यहाँ पे आपके प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किए, और हमने मुजाहरा किए तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ख़ासकर CM और सेक्रेटरी हेल्थ DG हेल्थ से हमने रिक्वेस्ट किए कि भाई इन लोगों का इस गरीबी हालत में एक बड़ा सरमाएदार, एक बड़ा कारोबारी भी 1+20,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक गरीब बंदा जो 500 रुपये रोज़ाना करके क्या वो दिन के पर डे 4,000 और पर मंथ के 1,20,000 रुपये उसका मेडिसिन का कीमत है। तो नोवाटिस कंपनी 3 साल से दे रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो पेमेंट किया था इस साल वो 2019 का और 2020 का, तो वो पैसे नोवाटिस कंपनी को दे दिए। अभी नोवाटिस कंपनी कह रहे कि 20 और 21 का बजट हमें चाहिए। अच्छा, तो कंपनी बकाई जात है। तो इस वक्त वो कंपनी वाले कह रहे थे कि हम 7 करोड़ रुपए लॉस में जा रहे हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, सेहत के लिए जो है हर हुकूमत जो है वो स्लोगन रखती है कि हम एजुकेशन और सेहत पे काम करेंगे। 49 अरब रुपए यानी एक कम 50 अरब रुपए जो है सेहत के लिए रखती है, वो कहाँ जा रहे हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, अभी ट्रामा सेंटर के लिए 2 जनरेटर रखे थे बहुत बड़े बड़े ट्रामा सेंटर में। अभी वहाँ पर जाऊँ, पिछले सालों एक जनरेटर गुम हुआ था ना, अभी वो पूरे सिविल हॉस्पिटल के 2 जनरेटर थे। इस साल जब मैंने जनरेटर देखे दोनों रख दिए, सोशल मीडिया पर तस्वीर चली गई। अभी इस ट्रामा सेंटर के एक जनरेटर गुम हुआ है, छोटा जनरेटर पड़ा हुआ है उसका। उसके अलावा मैं आपको एक बात, दूसरी बात, DG हेल्थ ऑफिस से मतलब उसमें करप्शन हद से ज़्यादा, उसका मैं नहीं बताता। एक यहाँ पर हमारा बंदा है, उसका नाम अभी मैं भूल चुका हूँ, MSD में एक बंदा था, पता नहीं कौन सा नाम था। उस MSD ने एक बंदे को ठेका दिया तकरीबन 86 करोड़ रुपया। वो 86 करोड़ रुपया कभी भी इस तरह नहीं हुआ है कि एडवांस पेमेंट गैर कानूनी है। इस बंदे ने अभी नाम मैं बोला हूँ, पता नहीं क्या नाम है उसका, पहले इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, पता नहीं कौन सा, जुल्फ़िकार मैक्सी, जुल्फ़िकार बंदा था। जुल्फ़िकार ने क्या किया, उस बंदे को 86 करोड़ रुपया जारी कर दिए एडवांस पेमेंट, वो बंदा भाग गया। अभी जाम साहब ने न कुछ किया, न उस पर कोई एक्शन लिया। आजकल हमारे इदारे, मैंने पोस्टिंग भी दी थी, मैंने उसको पोस्टिंग भी मिली है, 2-3 दिन हो गए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे जितने करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी, सब ब्यूरोक्रेसी को इस टाइम आला मुकाम पर एक जगह तक पहुंचाए गए। जो हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी थी वो बेचारे साइड पर बैठे हुए। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा था कि अमरीत के दौर में, यानी आपने नाम भी ले लिया, जावला का भी ले लिया, लेकिन हम लोग तो जमहूरियत चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मसले जमहूरी तरीके से हल होते हैं। आपकी नज़र में अगर जमहूरी तरीके से हम मसले हल नहीं करेंगे तो कौन सा एक फार्मूला है कि हमारे मसले हल हो जाए? फार्मूला ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, अगर एक मवासलात डिपार्टमेंट है, वो एक बंदा SDO भर्ती होता है, फिर एक्सन बन जाता है, फिर चीफ बन जाता है, फिर DG बन जाता है, फिर सेक्रेटरी उसी डिपार्टमेंट का वही बंदा होना चाहिए, यानी तजर्बे की बुनियाद पर। तजर्बे की बुनियाद। अगर एक बंदा एजुकेशन सेक्रेटरी है तो वो टीचर होंगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर होगा, फिर डायरेक्टर होगा, फिर सेक्रेटरी होना चाहिए, ताकि उनको सारे स्ट्रक्चर उनको पता होना चाहिए, कि पता होगा कि भाई ये हमने ये डिपार्टमेंट किस तरीके से चलाना है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहे हैं, एक जिम्मेदार हा के हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना देते हैं। क्या इस कैबिनेट में या इस असेंबली के मेंबर्स में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है?
अच्छा, एक कानून का मिनिस्टर भी एक जिम्मेदार बना देता है। कम अज़ कम इस एमपीशिप में इतने सारे एमपीए में कोई वकील नहीं है कि इस कानून का मिनिस्टर बना लेता है। तो इसी वजह से हमारा सिस्टम पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब मुख्तसर बता दिए आप 12 सितंबर के हवाले से जो प्रोग्राम है उसका असल मकसद क्या है? पूरे कोयटा शहर के जितने हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सूबाई वज़रा हम लोगों ने उसको ख़ुसूसी इन्वाइट किया। इस हवाले से ये प्रोग्राम हम लोग उसके हवाले से बनाना चाहते हैं। हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी थे जो शहीद हो चुके, हमारे पुलिस के जो शुहदा जो शहीद हो चुके, और हमारे फोर्सेस के जो शुहदा जो शहीद हो चुके बलूचिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, हम लोग इसके हवाले से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। 12 तारीख़ 4 बजे बरोज़े हफ्ता बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ख़ुसूसी यौम दिफा के हवाले से भी ये प्रोग्राम होगा। तो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। तो इसके हवाले से ख़ुसूसी आवाम से रिक्वेस्ट भी है इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक साहब मुख्तसर कबायली हवाले से जी आजकल भी कुछ मसाइल हैं। जी जी पहले जरगों की अहमियत होती थी लेकिन आजकल जरगों की अहमियत नहीं है। तो आजकल जरगों की अहमियत इस वजह से नहीं है कि एक तो हमारे नवाब साहब को चाहिए कि जितनी भी जो ओरिजिनल नोटेबल पर्सनस है, या अहमद शाह अब्दाली के दौर से या बरतानिया के दौर से जो नोटेबल पर्सनस है हर कास्ट के, तो उनको देखें और इकट्ठा करके एक जरगा बनाएं और उस जरगे के मुताबिक हर प्रॉब्लम हर मसला सॉल्व हो सकता है। हर जितना भी बड़ा मसला हो वो सॉल्व हो सकता है। आजकल तो पैसों का और फेसबुक का दौर है। सरदार भी बन जाता है, मलिक भी बन जाता है, नवाब भी बन जाता है। लोगों को पता नहीं होता है कि जी कल कहते हैं कि मैं मलिक हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं नवाब हूँ। तो असल बंदे पीछे हैं जो आजकल पैसों और पैसों का दौर आ गया, पैसों का दौर आ गया। और फिर दूसरी बात, ट्राइबल के जो पर्सनस है, हर ट्राइब के जो बंदा है, मलिक है या सरदार है, नवाब है, वो सिंसियर भी नहीं अपनी कौम से। उनको वो तरीका नहीं आता है, वो ट्रैक से हट के जा रहे हैं, अपने ट्रैक से हट के जा रहे कि वो अपने आप को पहचान नहीं सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे करूँ। उसके जो एडवाइज़र्स है, वो एडवाइज़र्स वो भी ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ट्राइबल सिस्टम से बिल्कुल टच ही नहीं होता है। वो आके यूनिवर्सिटी पढ़ा है, MSc पास है, वो भी अपने कबीले के सरबराह को कह सकते हैं कि जी इस तरह करो उस तरह करो। उनको ट्राइबल सिस्टम को क्या पता है। थैंक यू मलिक सुरखान साहब, डॉक्टर सनासिक साहब, टीम। नाज़रीन आप लोगों ने हमारे मेहमानों की बातें सुन ली है, लेकिन इस वक्त जो है मज़ीद जो दावा वादा उठाने है, अगर कोई काम करते हैं तो आगे आ जाएगा, अगर नहीं करते हैं फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस तरह बातें करते रहेंगे तो ये मिसाल होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।